اس خطۂ ارضی کو ہندوستان کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے پاکستان اپنا یوم آزادی 14 اگست کو مناتا ہے اور انڈیا اپنا یوم آزادی 15 اگست کو مناتا ہے۔ لیکن برطانیہ نے جب یہاں پر قبضہ کیا تو پورا سکول سسٹم، کالج سسٹم جو مغلیہ دور حکومت میں قائم کیا گیا تھا اس کو بالکل ختم کر دیا گیا، اور اس کے مقابلے میں برٹش حکومت نے اپنا سکول سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا اور اپنا نظام تعلیم جو ہے وہ متعارف کروایا۔ پاکستان میں اسلام کی ترویج کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم اردو کو سیکھیں، اردو کو پروموٹ کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اردو کا ایک ورثہ جو ہے وہ باقی چھوڑ کے جائیں، اور انگلش میڈیم سے ہم بتدریج جو ہے وہ آہستہ آہستہ بر صغیر میں مسلمانوں کی حیثیت کو جاننے کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس خطۂ ارضی کو ہندوستان کیوں کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس کا نام ہندوستان مذہب ہندو کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک جغرافیائی نام ہے، اور سب سے پہلے یہاں پر انڈس ریور کے کنارے پرشین امپائر نے آبادی قائم کی تھی، جب اس کو سندھو ندی کہا جاتا تھا، یعنی وہ دریائے سندھ جو آج پاکستان کا ایک بہت بڑا کامن دریا ہے اور انڈیا سے چلتا ہوا یہ بحیرہ عرب کے اندر جا کے گر جاتا ہے، اس دریا کو سندھو ندی کہا جاتا تھا۔ تو ایرانیوں نے جب یہاں پر آبادی قائم کی تو اس خطۂ ارضی میں رہنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے یہ لفظ سب سے پہلے استعمال کیا، اور گرامیٹیکلی انہوں نے لفظ سین کو ہا کے اندر تبدیل کرتے ہوئے اسے ہندو ندی کہا جانے لگا۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ ستان کا لفظ فارسی زبان کے اندر رہنے والی جگہ کے لیے بولا جاتا ہے، چنانچہ سب سے پہلے فارسی لوگوں نے اس جگہ کو ہندوستان کہا، یعنی وہ لوگ جو سندھو ندی یعنی ہندو ندی کے کنارے رہتے تھے ان کو ہندوستانی کہا جانے لگا۔ تو اس خطے کا نام ہندوستان جو ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے ہے۔ قیام پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت پاورفل اور سٹرونگ دلیل ہے کہ جتنا حق ہندوستان کے اوپر مذہب ہندو اختیار کرنے والے لوگوں کا ہے اتنا ہی حق یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا ہے۔ تو اس تاریخ سے آشنا کروانا اپنی آنے والی نسل کو بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ثقافت، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کے تمدن کا علم بردار ہے اور محافظ ہے۔ دیکھیے ہمارے لیڈران جو ہیں وہ اس قدر غیور تھے اور اس قدر غیرت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اگرچہ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں انڈیا اور پاکستان کا قیام ایک ہی دن عمل میں لایا گیا، لیکن اس کے باوجود انڈیا اپنا یوم آزادی 15 اگست کو مناتا ہے اور پاکستان اپنا یوم آزادی 14 اگست کو مناتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک بہت پیاری اور بہت بنیادی وجہ جو تاریخ میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس کے لیے پاور ٹرانسفر کرنی تھی، اور پاور ٹرانسفر کرنے کے لیے برٹش امپائر کی طرف سے وائس رائے جو کہ یہاں پر ایک نمائندہ ہوتا تھا برٹش گورنمنٹ کا وہ مقرر کیا جاتا تھا۔ چنانچہ 14 اگست 1947 کو جو وائس رائے تھے ان کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بیک وقت یہ پیشکش گاندھی اور قائد اعظم دونوں کو کی کہ انہیں اگر انڈیا اور پاکستان کا پہلا گورنر جنرل بنا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ ان کو ایک تجربہ تھا اور یہ دونوں ملک نئے نئے وجود میں آ رہے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ان ملکوں کو میں تھوڑا سا رن کر دوں گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کی اس پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ گاندھی نے ان کی اس پیشکش کو تسلیم کر لیا تھا۔ اب طریقہ کار یہ تھا کہ 15 اگست کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ پہلے گاندھی کو پاور ٹرانسفر کریں گے اور انڈیا اور بھارت کا وجود جو ہے وہ عمل میں آ جائے گا، اور اس کے بعد کراچی میں آ کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ قائد اعظم کو پاور ٹرانسفر کریں گے۔ لیکن اس کا نتیجہ لازمی طور پہ یہی نکلنا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب 15 اگست کو کراچی میں آ کے قائد اعظم کو پاور ٹرانسفر کریں گے، یعنی پاکستان کے اختیارات دیں گے، تو اس وقت ان کی دو حیثیتیں ہوں گی، ایک وہ وائس رائے برطانیہ کی طرف سے ہوں گے اور دوسری حیثیت ان کی یہ ہوگی کہ وہ انڈیا کے پہلے گورنر جنرل ہوں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں پر ایک غیرت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے برٹش گورنمنٹ سے اس بات کا تقاضا کیا کہ ہمیں یہ کسی صورت بھی قبول نہیں ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے گورنر جنرل انڈیا ہونے کی حیثیت سے پاکستان کو پاور ٹرانسفر کریں، چنانچہ اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ رکھا جائے، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ تلاش کیا جائے۔ لہذا اس کے لیے یہ طے پایا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلے 14 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح کو پاور ٹرانسفر کریں گے، اور اس کے بعد 15 اگست کو جا
जाकर गांधी को पावर ट्रांसफर की जाएगी। तो इस तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक गैरत का मुजाहिरा किया कि इंडिया के साथ और भारत के साथ हमारा एक ताल्लुक जो गैरत और हमीयत का है वो कायम रहेगा। और ये बात हमारी आने वाली नस्लों को पता होनी चाहिए, जो आज सरहद पार मुलाकातों के ख्वाहिशमंद हैं और जो बॉर्डर को ख़त्म करने की बातें करते हैं और जो सेकुलर स्टेट की बातें करते हैं, उनको ये बात इल्म होनी चाहिए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तो ये भी गवारा नहीं किया था कि इंडिया का पहला गवर्नर जनरल होने की हैसियत से लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र करे। इसीलिए पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाता है और इंडिया अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाता है। देखिए, जो बात मैंने कही कि पाकिस्तान जो है वो बर्रे सगीर में मुसलमानों का मुहाफिज है, मैं तारीखी एतबार से ये बात आपको थोड़ी समझा दूं। देखिए, यहाँ पर मुगलिया हुकूमत ने एक अरसे तक अपना सिक्का जमाए रखा है। जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए से ब्रिटिश गवर्नमेंट को लॉन्च किया गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत और अपनी सल्तनत जो है वो कायम की, तो आप देखिए कि उन्होंने तारीख को किस तरह से बदला और तारीख को किस तरह से मसख किया गया। आप आज का नौजवान जो है वो यही जानता है कि मुगलिया हुकूमत जो है उसने कोई तालीमी सरगर्मियां जो है वो शुरू नहीं की थी, बस वो उन्होंने अय्याशी और तमाशबीनी के अंदर और नाच गाने के अंदर ही सारा वक्त जो है वो गुजार दिया। और जितनी भी यहाँ पर तालीमी कारनामे सरअंजाम दिए गए हैं, आज का नौजवान या आज का मुसलमान ये समझता है कि वो सारे के सारे कारनामे जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी बरतानिया ने जो है वो कायम किए, क्योंकि बहुत से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उन्हीं के नामों के ऊपर कायम की गई हैं और उन्हीं की बनाई हुई हैं, जो आज तक नाम तब्दील करके इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दरअसल ये तारीख़ के साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया और तारीख़ को मसख किया गया। मैं इसके लिए सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ कि देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि मुगलिया हुकूमत जो है तालीम से बिल्कुल नाआशना थे, तो ज़रा ये बताइए कि दुनिया का 7वां अजूबा जिसे ताजमहल आगरा कहा जाता है और शीश महल जैसी इमारतें और ऐसे खूबसूरत शाहकार के जो आज भी अपने फ़न का मुंह बोलता सबूत पेश करते हैं, आखिर उनको बनाने वाले इंजीनियर्स कहाँ से पड़े थे? उनको बनाने वाले कारीगर, उनको बनाने वाला एक पूरी टेक्निक जो है वो कहाँ से इस्तेमाल की गई? वो कौन से स्कूल थे, वो कौन से कॉलेजेस थे, उनके उस्ताद कौन थे? ये सब कुछ क्या खुद ब खुद हो गया या एक आम सा देसी सा मिस्त्री जो है वो इतना बड़ा शाहकार तामीर कर सकता है? तो देखिए, अगर आप तारीख पढ़ेंगे तो मुगलिया दौरे हुकूमत में स्कूल का सिस्टम, कॉलेजेस का सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम इतना पुख्ता था कि 90% आबादी बर्रे सगीर की वो तालीम याफ्ता थी। वो पढ़ना जानती थी, लिखना जानती थी और हिसाब करना जानती थी। और मुगलिया हुकूमत की तरफ से लोगों की तालीम का इंतज़ाम इतना पुख्ता था कि अकेले बम्बई शहर के अंदर 222 कॉलेजेस मौजूद थे। और अगर हम बात करें मद्रास की तो 1101 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अकेले मद्रास के अंदर कायम की गई थी। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं आपको ये बताने के लिए कि मुगलिया हुकूमत में तालीमी निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग था। और यही काफ़ी नहीं है, बल्कि मुगलिया दौरे हुकूमत में तो लोगों को घरों में जाकर पढ़ाने का एक पूरा सिस्टम था। यानी 8 साल की उम्र में बच्चा जो है वो बाकायदा रवायती तालीम के लिए स्कूल या कॉलेज जाता था, लेकिन उससे पहले ऐसे टीचर जो सरकारी तौर पर मुंतखब थे, जो किसी भी ख़ानदान को उनके घर में जाकर पूरे ख़ानदान के बच्चों को तालीम दिया करते थे। यानी बर्रे सगीर एक पढ़ा लिखा मुआशरा था। लेकिन बरतानिया ने जब यहाँ पर कब्ज़ा किया तो पूरा स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम जो मुगलिया दौरे हुकूमत में कायम किया गया था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और उसके मुकाबले में ब्रिटिश हुकूमत ने अपना स्कूल सिस्टम जो है वो लॉन्च किया और अपना निज़ाम तालीम जो है वो मुतारिफ़ करवाया। और उस निज़ाम तालीम के अंदर इंग्लिश को लाजमी करार दे दिया गया। और बर्रे सगीर के अंदर जब ये बरतानिया के तसल्लुत में था, इंग्लिश को इसकी सरकारी ज़ुबान करार दे दिया गया। और बतदरीज 50 साल के अंदर इस गवर्नमेंट ने मुगलिया निज़ाम तालीम को ख़त्म करके अपना निज़ाम तालीम लॉन्च कर दिया। यहाँ ये बात भी मैं बताता चलूँ कि यही वो वक्त था जब दुनियावी और दीनी तालीम जो है वो जुदा जुदा हुई, क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत ने दीनी तालीम को चाहे वो हिंदुओं के लिए हो या चाहे वो मुसलमानों के लिए हो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था और टोटल अपनी जो एक दुनियावी तालीम थी उसको लॉन्च कर दिया था। और वो तमाम फ़नून और वो तमाम इल्मी किताबें जो मुगलिया हुकूमत के अंदर राइज थीं उनको कन्वर्ट करके अपने निज़ाम तालीम और अपने नाम के साथ शाया करना शुरू कर दिया था। देखिए, एक नस्ल के जहन को बदलने के लिए सिर्फ 25 साल दरकार होते हैं,
लेकिन बरतानिया हुकूमत ने इसको डबल करके 50 साल के ऊपर मुहित करके, यानी 50 साल के अंदर इन्होंने मुगलिया हुकूमत के निज़ाम तालीम को बिल्कुल स्टॉप कर दिया और उसी 50 साल के अंदर इन्होंने अपना निज़ाम तालीम जो है वो राइज कर दिया। यानी 50 साल के बाद जो बच्चा बर्रे सगीर में था उसको ये पता ही नहीं था कि मुगलिया दौरे हुकूमत में निज़ाम तालीम क्या था और किस तरह तालीम दी जाती थी। तो यहाँ पर जब दुनियावी और दीनी तालीम अलग अलग हुई तो उस वक़्त के उलमा को फिर ये फ़िक्र लाहिक हुई कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारा दीनी विरसा जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और मफकूद हो जाएगा। तो उस वक़्त ये दीनी और दुनियावी तालीम का अलग अलग का कॉन्सेप्ट बर्रे सगीर के अंदर लॉन्च हुआ। चुनाचे दीनी तालीम की बका के लिए और इसकी हिफाजत के लिए फिर बड़े बड़े मदरसे कायम किए गए और चूंकि बरतानिया हुकूमत ने दीनी तालीम को ख़त्म करके एक इंग्लिश स्कूल सिस्टम लॉन्च कर दिया था और इधर जो है वो उलमा ने दीनी तालीम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदारस कायम किए थे, तो उलमा के दिल में इंग्लिश के लिए एक मुखालिफत और एक नफ़रत की फ़िज़ा पाई जाती थी। इसी वजह से मदारिस के अंदर इंग्लिश का पढ़ना या इंग्लिश को पढ़ाना ये अलाउ नहीं था। और ये बात भी समझ लीजिए कि अगरचे बरतानिया की हुकूमत तो यहाँ से ख़त्म हो गई, लेकिन अपना निज़ाम तालीम जो इंग्लिश मीडियम वो आपको दे गए हैं। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर बर्रे सगीर के अंदर उर्दू को प्रमोट नहीं करते, जब तक आप अपनी सरकारी ज़ुबान उर्दू नहीं करते, जब तक आपका अदालती निज़ाम, आपका टैक्स सिस्टम, आपके दफातर के अंदर उर्दू को नहीं लॉन्च किया जाता, तब तक आप इस गुलामाना सोच और इस गुलामाना फ़िक्र से आज़ाद नहीं हो सकते। और जब तक आप इंग्लिश को अपने ऊपर मुसल्लत रखेंगे, एक ख़ास तबका जो कि उनके ही ज़ेरे साया काम कर रहा है वो अवाम के ऊपर मुसल्लत रहेगा। क्योंकि एक आम आदमी जब इंग्लिश पढ़ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, तो वो उसको डील कैसे करेगा? उसको डील करने के लिए वो लाज़िमन मोहताज रहेगा। और हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर आज भी अगर आप देखेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनको तो अब उर्दू सही तरीके से बोलनी नहीं आ रही, उनको तो उर्दू अब सही तरीके से लिखनी नहीं आ रही। तो ये बात बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में इस्लाम की तरवीज के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम उर्दू को सीखें, उर्दू को प्रमोट करें और अपने आने वाली नस्लों के लिए उर्दू का एक विरसा जो है वो बाकी छोड़ के जाएं और इंग्लिश मीडियम से हम बतदरीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निजात हासिल करें। तो बात में ये कर रहा था कि उस निज़ाम हुकूमत के अंदर यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर एक पूरी तारीख जो है वो बदल दी गई। आज पाकिस्तान अगर ना हो तो उसी तारीख को इंडिया के अंदर और भारत के अंदर दोहराया जा रहा है। जी हाँ, वो किस तरह? इस बात को बड़े ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़, इलाके, मोहल्ले, इमारतें आज भी ऐसी मौजूद थीं कि जिनके नाम मुसलमानों के नाम के ऊपर रखे गए थे। क्योंकि मुसलमानों ने यहाँ पर अपना एक दौर गुजारा है, मुसलमानों ने यहाँ पर एक तरक्की करके दिखाई है, एक मेहनत करके दिखाई है और मुसलमानों की एक कसीर तादाद में आबादी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अब इंडिया की तरफ से ये इक़दामात किए जा रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ तमाम स्कूलों के नाम मुसलमानों के नामों से हटाकर हिंदुओं के नामों पे किए जा रहे हैं, इलाकों के नाम हिंदुओं के नामों के ऊपर कन्वर्ट किए जा रहे हैं, कॉलेजेस के नाम हिंदुओं के नामों के ऊपर कन्वर्ट किए जा रहे हैं। और इसी तरह निसाब तालीम के अंदर से मुसलमानों की तारीख़ और मुगलिया दौर की वो 1000 साला तारीख़ और उनके कारहाय नुमाया जो हैं उनको मिटाकर उसके मुकाबले में हिंदुओं की मनगढ़ंत तारीख़ जो है और बहादुरी के मनगढ़ंत किस्से जो हैं वो शामिल किए जा रहे हैं। यानी इस तरीके से अगर आप निज़ाम तालीम को बदलेंगे और अगर इस तरीके से आप इलाकों के नामों को बदलेंगे तो आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो इंडिया के अंदर या भारत के अंदर पढ़ने वाला मुसलमान जो है वो अपनी तारीख से किस तरह से नाआशना हो जाएगा। वो जान भी नहीं सकेगा कि यहाँ पर मुसलमानों ने क्या कारहाय नुमाया सरअंजाम दिए थे। हालांकि जबकि हम ये भी जानते हैं कि नाम तब्दील करना ये कोई आसान काम नहीं होता। एक अंदाजे के मुताबिक अगर इंडिया के अंदर किसी इलाके का नाम तब्दील किया जाता है तो उस पर 500 करोड़ रुपया खर्च आता है। क्योंकि वो नाम तब्दील करना सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आपने एक अनाउंसमेंट कर दी और नाम तब्दील हो गया, नहीं, बल्कि मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर से नाम को तब्दील किया जाता है। फिर ये ऑनलाइन सिस्टम है, तमाम ऑनलाइन सिस्टम सैटेलाइट से, हर जगह से, गूगल से, हर जगह से नाम को जो है वो तब्दील किया जाएगा। इसी तरह एयरपोर्ट्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से जो है वो नाम को तब्दील किया जाएगा। और यही काफ़ी नहीं है, बल्कि बहुत सी कंपनीज जिन्होंने वहाँ पर
ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوتی ہے ان کو جو ہے وہاں سے وہ نام جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے نام تبدیل کرنا یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے, اس پر ایک بہت بڑا خرچہ آتا ہے, لیکن اس کے باوجود انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نام تبدیل کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بر صغیر ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کی تاریخ کا خاتمہ ہے. تو اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اس بر صغیر کے اندر, اس ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تہذیب, مسلمانوں کی ثقافت, مسلمانوں کے تمدن اور مسلمانوں کی تاریخ کا محافظ ہے. اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کو صرف ایک مسلمانوں کا ملک نہ سمجھیں, پاکستان کو صرف ایک خطہ نہ سمجھیں, بلکہ پاکستان بر صغیر کے اندر, ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تاریخ, تہذیب, تمدن کا محافظ ہے. اس پاکستان کی قدر کریں اور اس پاکستان میں وہ نظام رائج کرنے کی کوشش کریں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح رائج کرنا چاہتے تھے, اور وہ نظام تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس بنیاد کے اوپر پاکستان کو بنایا گیا. اور اس دو قومی نظریوں کو سمجھیں. دو قومی نظریہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ پاکستان کا قیام اسلام کے تحفظ کے لیے, اس خطہ ارضی میں مسلمانوں کے بقا کے لیے, اور اس خطہ ارضی میں مسلمانوں کی تاریخ کو قائم رکھنے کے لیے, اور پریکٹیکلی طور پر اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا تھا. پاکستان زندہ باد.